Welcome you children. Okay, today we are discussing chapter 2, okay, of your syllabus, that is polynomials. You have learned this concept of polynomials, I think, in far depth in class 9. Okay, so let's recall it quickly. What does whatever you learned in class 9. Okay, so first of all, in class 9 you learned about the basic part of polynomials. What are polynomials, right? Different types of polynomials and zeros and degree of polynomials. So let's have that in the form of table and have a gist of it. So first of all, you learned about linear polynomial. Okay, linear polynomial. Okay, linear polynomial is of the form ax plus b. Its general form is ax plus b, where a is not equal to 0. How many zeros are possible with it? So only one zero, maximum number of zero are 10. Okay, and you could say here ax plus b, that is the power of x is 1, and the name itself is linear, so the degree is also 1 here. Okay, then second you learned about quadratic polynomial, which is of the form ax square plus bx plus c. Again here a is not equal to 0. You can understand why a is not equal to 0 here. But if suppose a becomes 0, then it does not remain linear polynomial. And that's why the coefficient of the main variable will not be 0 over here. The main I emphasize, like in linear, the x is the prime one. So its coefficient will never be 0. Similarly, for quadratic polynomial, the prime one, the name is, describes the quadratic, that is x square, the degree is square, the degree is 2. So its polynomial's coefficient a will never be 0, because once it gets 0, then it does not remain quadratic polynomial. And similarly here, cubic polynomial, so ax cube plus bx square plus cx plus b form. Okay, so now here you can relate this with the degrees and with its power also. Okay, then what about maximum number of zeros? So the degree is 2. You could remember the maximum number of zeros. Remember zeros. What are zeros? The zeros are nothing but the values of a variable on which substitution to polynomial, मतलब कि इस polynomial में आप जब उसकी वैल्यू डालोगी तो वो वैल्यूज जो polynomial की वैल्यू को ही जीरो बना देंगे. जैसे कि आपने इक्वेशन में पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या तो जो भी x का आंसर आता था आपका, तो उसी को हम यहाँ पे कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, एंड डिग्री इज 2 हियर. क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर इज 3, so the degree is 3, and similarly maximum number of zeros are also 3. maximum number of zeros, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी मिल सकती है? 3 मिल सकती है. उसी तरीके से यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1. ओके, अब दूसरा यहाँ पे फॉर क्लास 10 यू आर लर्निंग बिट न्यू ऑफ इट, जो थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट में है, ज्यादा डेप्थ में नहीं है आपको. इट सेज दैट इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली यू आर ऑल फेमिलियर विद ग्राफ्स, आपने जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा है बेसिकली, देन आई विल रिप्रेजेंट दिस y in the form of y. Say y is equal to ax plus b. So we get the two values of x and y. We get the two coordinates. Then we can express this as geometry, right? जैसे कि आप सिंपली इसको देख सकते हैं ax plus b form. Okay, so x और y में हमने इसको डाल दिया, तो you get a linear graph. और आपने लास्ट ईयर किया हुआ है, linear graph अपना हमेशा किस तरीके से होता है? स्ट्रेट लाइन होती है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? जैसे इस टाइप का है. इट कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, बट आई एम जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ. तो अब इसको जीरो के साथ कैसे कनेक्ट करना है? हाउ विल यू डिसाइड फ्रॉम द ग्राफ दैट हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल? ठीक है, सिर्फ ग्राफ पे से कैसे डिसाइड करना? सो जस्ट लुक एट द ग्राफ. आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है आपका, वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, या तो कितनी बार कट कर रहा है. रादर एक्स एक्सिस, माइंड इट, इट्स ओनली एक्स एक्सिस, आई सेड इट्स नॉट ऑप्शनल. तो एक्स एक्सिस को वो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है. और आपको पता है स्ट्रेट लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा वो दूसरी लाइन को एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम कट कर सकती है. सो इन दैट केस आपका यहाँ पे जीरो होगा 1. तो हमेशा
लीनियर में ग्राफ आपके कितने जीरो, जब ग्राफ आपको दिया हो तो आप डिसाइड कर सकते हो लीनियर में मैक्सिमम जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। ओके, फिर जब आप क्वाड्रेटिक को करते हो रिप्रेजेंट इन ज्योमेट्री फॉर्म, तो इट इज समथिंग लाइक y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपने इसका ड्राइंग कभी किया नहीं है, और जनरली जब इस टाइप के ड्रॉ हम करते हैं, जब इसमें वैल्यूज रख के आप y की x की कोई भी वैल्यूज लेके फिर आप y फाइंड करते हो, राइट? तो इस तरीके से जब आप डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करोगे एंड यू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, तो वो हमेशा समथिंग लाइक दिस यू गेट, समथिंग विद दिस फॉर्म। ओके, एंड दिस इज यू शेप्ड वाला, जिसको हम कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला। ओके, ये जो फिगर है जिसको हम कहेंगे पैराबोला, व्हिच यू विल लर्न इट इन द हायर क्लासेस डेफिनेटली। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमेशा एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट में कट करेगा मैक्सिमम, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी 1 पॉइंट में भी टच होते हुए बना सकती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे कितने पॉइंट में कट कर रहा है, 2, यू कैन सी 2। एंड क्यूबिक का जब हम ग्राफ बनाते हैं इसी तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स। ओके, एंड हेंस द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 zeros। So in case you are given with the graph and say 1 mark question, short questions है आपके, या एमसीक्यूज है, तो आप ग्राफ से ही आप बता सकते हो कि कितने जीरोस हैं आपके। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ओके, इसलिए इसको हम कहेंगे देयर इज ओनली 1 जीरो। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरो। जीरो इज नथिंग बट द सॉल्यूशन, जो आपकी एक्स की वैल्यू है, फाइनल आंसर वो। और यहाँ पे जब क्यूबिक होगा तो कितने पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट्स पे। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आएगा, यू हैव टू बेसिकली ओनली draw the graph, okay? You have to, sorry, I'm really sorry, you don't have to draw the graph actually, basically आपको यहाँ पे सिर्फ ग्राफ पे से जज करना है that how many zeros are possible, okay? So we'll go further now, okay? यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो मैंने लिखा होगा जनरल फॉर्म, और यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे, स्पेशली हम क्वाड्रेटिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या है, तो जनरल फॉर्म इज ax square plus bx plus c, ओके? तो इसको आपको याद रखना है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज ax square plus bx plus c। तो हम इसके रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपने इसको फैक्टराइज कैसे करना है, ओके? आई हैव ऑलरेडी टेकन अ स्पेशल लेसन ऑन इट, मैंने 2 बार आप लोगों की क्लास ली है। स्टिल इफ यू हैव सम डाउट हाउ टू डू द फैक्टराइजेशन लाइक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और इसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, then you can watch that lesson। right now we are discussing with something different, ओके? तो वो ये हम क्या डिस्कस करें, तो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जब इस टाइप का पॉलिनोमियल होता है तो इट हैज 2 zeros, okay? And let these 2 zeros be alpha and beta। हम हमेशा इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, एक कन्वीनियंस के हिसाब से हमने जनरलाइज किया है। जो दो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी, उसको एक को आप अल्फा कहेंगे और एक को आप बीटा कहेंगे। तो क्या मिलता है, लेट्स सी विद द एग्जांपल, ओके? तो आई विल टेक एन एग्जांपल, px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके? तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगेन आई एम सेइंग कि ये मैंने अलग से वीडियो बनाई है दैट हाउ टू स्प्लिट दिस मिडिल टर्म एंड फैक्टराइज इट, so you are aware of it, so please watch it if you have any confusion। so 6, तो इसके दो फैक्टर्स में हम डाल सकते हैं 6, यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टराइजेशन इस तरीके से आएगा, ओके? वी गेट दिस एज 2 एज अ फैक्टर्स। देखिए मैं 2 शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, फैक्टर्स एंड जीरोस। तो जो x प्लस 2 और x प्लस 3 है, जो x के साथ जब होते हैं तब आप उसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। बट जब मैं इसको जीरो के साथ कंपेयर करूंगी, यानी कि मैं इस तरीके से लिखूंगी फॉर जीरोस x plus 2 is 0 or x3 is 0, ओके? तो इन दिस केस x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और मुझे यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। so let one of the value be and the other value be, are you getting it?
तो इस तरीके से हम करेंगे. So by middle term splitting, it would help you to find it out alpha and beta. Okay, these are the simplest example. बहुत बार ऐसा होगा कि आपको middle term splitting के अलावा भी अलग मेथड यूज करनी पड़े. Like directly we go with the alpha and beta that we will see later. तो अभी हमें alpha and beta मिला. अब आप इसको कंपेयर कीजिए. If I add these two numbers, मतलब कि जो मुझे अल्फा और बीटा मिला है उसी को मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, -5. एंड if I multiply them what I get, okay, तो क्या मिल रहा है, -2 into -3, so I get this as +6. ठीक है, अब इसको ले लिया हमने, say this is number 1 and this is number 2. अब मैं इसको जब जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रही हूँ, so on comparing, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है a is equal to 1, b is equal to 5 और c is equal to 6. ओके, कुछ भी डाउट हो तो यू कैन गिव मी द कमेंट्स एट द साइड ताकि मुझे पता चले कि कुछ डाउट है. ओके, c is equal to 6 और यहाँ पे आपको चेक करना है -b/a. ठीक है, तो -b/a क्या है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे -5/1, यहाँ पे माइनस साइन है वही वाली है, सो आई गेट दिस इज -5 और इसको मैं ले रही हूँ स्टेटमेंट नंबर 3 और फिर कर रहे हैं c/a. तो c क्या है हमारा 6, a क्या है 1, so I get 6. And now compare 1, 2, 3 and 4. What will you compute? So you can say this, alpha plus beta -5 minus b/a is -5. So I can compute that alpha plus beta is equal to -b/a. And second, alpha into beta is equal to c/a. So what did we do here? Okay, so what did we do here? The question. Now I'm telling you the question. क्योंकि यदि पहले क्वेश्चन बताया होता तो शायद कंफ्यूजिंग लगता. The question comes like this: verify. Okay, listen. Verify the relationship between the zeros and the coefficients of a polynomial. तो हमने पहले यहाँ पे zeros निकाले, ओके, फिर उसका रिलेशन यहाँ पे लिया एंड देन हमने उसकी रिलेशनशिप उसके वेरिएबल्स यहाँ पे कोएफिशिएंट के साथ ली. तो हमें क्या मिला, that alpha plus beta is equal to -b/a and alpha into beta is equal to c/a. बस यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन की कि वही है कि आपको पहले फैक्टराइज करना है, अल्फा और बीटा निकालना है, ओके, और फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा इंटू बीटा अलग से फाइंड करना है, -b/a c/a अलग से फाइंड करना है. तो ये जो आपके चार स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, फिर आपको इस चारों स्टेटमेंट में से कंफ्यूजन लिखना है that alpha plus beta is equal to this and alpha into beta is equal to c. Okay, this is the relationship. तो डेफिनेटली ये आना ही आना है इक्वल. समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मतलब ये आपको इक्वल नहीं मिल रहा है, that means definitely your question is wrong. I mean some solving part is wrong. तो ये प्लीज याद रखिए, and it is one of the common question which comes in the exam, that verifying the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. Okay, so this comes as a 2 or 3 marks question. So please practice this kind of question. और इसमें जब एक थोड़ा सा मैं डिटेल में डालना चाहूंगी कि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं. सो जस्ट लुक एट इट कि सपोज कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि इसमें जीरो फाइंड नहीं करना है. ओके, इसी प्रॉपर्टी को दूसरी तरीके से कैसे यूज करना है, लेट px is equal to say x square minus x minus और प्लस के. ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है that x square is equal to x square minus x plus k and one of the zero and 1 0, यानी कि say suppose none. Okay, one of the zero is 9, then you have to find out the another zero. ठीक है, if one of the zero is 9 then you have to find out the another value of, first of all आपको यहाँ k फाइंड करना है और फिर आपको कहेंगे कि दूसरा जीरो भी फाइंड करिए. तो ये आपको किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे आपको आपके क्लास 9 के कॉन्सेप्ट के लिए पहले चलना पड़ेगा. व्हाट डज इट से, तो यहाँ पे जब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, जब आपको पता है 1 0, अभी मैंने जब एक्सप्लेन किया था, तो जीरो आपको किससे रिलेट करता है, एक्स की वैल्यू से. एक्स की वैल्यू और जीरो मिलके आपको क्या बनता है, फैक्टर. आपका क्लास 9 कॉन्सेप्ट
One of the zero is 9, and therefore I can say x minus 9 is a factor. याद आया ये आपको? ओके, ऑफ px. और जब x minus 9 is a factor, तो हमने फैक्टर थ्योरम सीखा था. ओके, मैंने कल ही आपको ये क्लास अटेंड करवाई है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन की क्लास 9 के साथ. तो जब फैक्टर थ्योरम है तो उसका मतलब क्या हुआ, that p of 9 जो x minus a के साथ is equal to 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे वैल्यू 9 की डाल दी. तो पॉलिनोमियल में 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे आप x की जगह पे, तो 9 प्लस a is equal to 0. तो क्या होगा, 81 minus 9 plus k is equal to 0. 81 minus 9, 72 plus k is equal to 0. And therefore k is equal to 70 minus 72. तो इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा px अब क्या बन गया. तो ये इस तरीके से आता है. पहले तो छोटा सा ये 2 मार्क या 1 मार्क में इस तरीके से भी पूछा जाता है. That if one of the zero is given, you have to find out the value of k. ठीक है, इतना सा भी पूछ सकते हैं, या तो इसका आगे भी ऐसे पूछ सकते हैं that now find the other zero या verify the relationship. तो इसे किसी से भी कनेक्टेड कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे आगे हम वैल्यू डाल के तो इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जीरो फाइंड कर सकते हैं. I hope I'm clear with the 2 points. First of all, introduction, different types of polynomials. और दूसरी चीज जो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस की, the graphs की geometrically आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं. And the next is relation between the zeros and the coefficient of polynomial in quadratic polynomial. And what is the general form of quadratic polynomial जो हमेशा आपको याद रहना चाहिए, that is ax square plus bx plus c. Okay, so this is a very common question which comes with your board exams. So I hope you have understood the topic. Okay, any doubt, any problems related to it, you can WhatsApp me or you can call me for that and clear your doubts. And already practice worksheet is given for that, so do follow it. Thank you.